نیا نظام آپ کی آسانی کے لیے، تاکہ آپ کو دور دراز علاقوں میں نہ جانا پڑے۔ یہ آخری دفعہ ہے کہ جو اس کے بعد آئندہ قسط ہے وہ آپ کے لیے جو ہے آپ اپنے من پسند ریٹیلر کے پاس جا سکیں گے، جو نزدیکی ترین ریٹیلر ہو، چاہے وہ جائز کیش کا ہو، چاہے وہ ایزی پیسہ کا ہو، چاہے حبیب بینک کا ہو، چاہے بینک الفلاح کو ہو، چاہے آپ دوسرے شہر سے چاہتی ہیں، آپ کہیں اور ہیں اور اپنے پیسے لینا چاہتی ہیں، تو آپ دوسرے شہر سے بھی یہ پیسے جو ہیں یہ لے سکیں گی۔ جلدی نہ کریں، آپ یہ پیسے جو ہیں یہ آپ کے، جیسے ہم نے آپ کو کہا، والیٹ اکاؤنٹ میں، آپ کے بٹوے میں آ چکے ہیں، تو آپ کے پاس ہیں، یہ محفوظ ہیں، یہ کہیں نہیں جائیں گے۔ آپ کو کوئی جلدی اس میں کرنے کی ضرورت نہیں، جو سم ہم نے دی ہے اس والیٹ کے اندر۔ تو یہ آپ یہ ضرور نوٹ کریں کہ اب وہ جلدی کرنے کی کہ کچھ دنوں میں ہی پیسے ختم ہو جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ پیسے آپ کی امانت ہیں، آپ کے پاس ہیں، اور آپ کسی وقت بھی وہ لے سکتے ہیں۔ اپنی پیمنٹ کسی بھی نزدیکی ریٹیلر جو متعلقہ بینک ہے آپ کا، اس سے لیں، اور آئندہ آنے والی جو قسطیں ہوں گی آپ کسی بھی بینک کے کسی بھی ریٹیلر سے اور کسی بھی شہر سے وہ پیسے لے سکیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مجاہد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں EDU ٹریننگ یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین، آپ کے لیے بڑی خبر حکومت نے بتا دی ہے۔ وہ گھرانے جو پہلے پیسے نہیں لے رہے تھے، اب حکومت ان کے کارڈز کو ATM کارڈ میں تبدیل کرنے جا رہی ہے، جس کے بعد انہیں بھی قسطیں دینے کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 2 نئے پروگرامز کے متعلق گائیڈ کرنے جا رہا ہوں کہ ان میں آپ کیسے شامل ہو سکتے ہیں، کیا طریقہ کار ہے۔ اس کے علاوہ بے نظیر پروگرام کی موجودہ قسط میں بہت سارے خاندانوں کے اکاؤنٹ نہیں بن پا رہے یا اکاؤنٹ بن گئے ہیں تو قسط نہیں مل رہی، انہیں کیا کرنا چاہیے۔ ویڈیو کو بڑے غور سے سنیں۔ آج کی ویڈیو میں نئی معلومات ہیں، راشن پروگرام کے متعلق کس کوڈ کو چلا دیا گیا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ حکومت کی جانب سے بھرپور فیصلہ کیا گیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کا شناختی کارڈ میں ہی وہ ایسی اپڈیٹ تبدیل کرنے جا رہے ہیں کہ اگلی قسط فوراً آپ کے ID کارڈ اور آپ کو آپ کے ID کارڈ نمبر پر مل جائے۔ لوگ تو آج کل یہی کہہ رہے ہیں، اس میں کتنی صداقت ہے، ذرا چیک کریں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا شناختی کارڈ ہی اب آپ کا اپنا ATM کارڈ بن جائے۔ یقین نہ آئے تو پوری ویڈیو دیکھ لیں اور سمجھ لیں۔ جن کے گھر والے واپس جا رہے ہیں اور پیسے نہیں مل رہے مگر ابھی تک اکاؤنٹ کا سٹیٹس جو ہے وہ خالی آ رہا ہے، یہ سمجھ تو آ رہا ہے کہ سم بھی مل گئی ہے، بندہ اہل بھی ہے اور ان کو پیسے ملنے بھی ہیں، لیکن ابھی تک قسط اکاؤنٹ میں کیوں نہیں آ رہی، اور اس کے بعد اگلی قسط بھی آنے والی ہے، آپ کو تو یہ والی قسط بھی ابھی تک نہیں ملی۔ میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم دفتر بھی گئے ہیں، ہم نادرا سے جا کے دوبارہ اپنا ID کارڈ بھی بنوا لیا ہے، اور بالفرض آپ نے ہیلپ لائن پر بھی کال کر لی ہے، لیکن مسئلہ ابھی تک وہیں کا وہیں ہے، یعنی جوں کا توں ہے، وہیں پر ہے۔ بس یہی ایک بات سمجھ آئی ہے تو انشاءاللہ آپ کا بھی کام بن سکتا ہے۔ بعد میں یہ نہ کہنا کہ ہمیں بتایا نہیں ہے۔ بے نظیر والوں کے لیے 2 نئی معلومات سامنے آ گئی ہیں، کہیں آپ ان خوش نصیب لوگوں میں شامل نہیں ہونے والے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آج کی اپڈیٹ سن کر آپ کہیں گے کہ کاش یہ بات پہلے پتہ چل جاتی، واقعی ہم اہل ہو جاتے۔ 8171 پر ایک جواب، دفتر میں دوسری بات، آخر عوام کو سیدھی بات کوئی کیوں نہیں بتاتا۔ آج سارا حساب صاف کر کے اپڈیٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تھوڑا صبر آپ کو کرنا پڑے گا۔ اگر چینل کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو بڑی اہم ترین سچی کھری معلومات EDU ٹریننگ، اور میرا نام مجاہد حسین ہے، یہاں سے آپ کو صاف ستھری خبریں ملتی رہیں۔ پوری ویڈیو دیکھیں، بار بار دفتر چکر لگانے سے اپنی جان چھڑائیں اور اہل ہونے کی طرف آئیں، اور آپ اہل ہونے کے لیے حکومت نے آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ اگر آپ پہلے نااہل ہو گئے تھے تو گھبرائیں نہیں، اب کھیل جو ہے سارا سسٹم حکومت نے بدل کے رکھ دیا ہے۔ اب آپ کے لیے اہل ہونا کوئی مشکل نہیں ہے، کہیں آپ کا نام دوبارہ شامل ہونے والا تو نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ کو تو علم ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے پتہ لگا سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کی قسمت پھر سے جاگنے جا
जा रही है। हुकूमत ने भरपूर फैसले का अपडेट जारी किया है। हो सकता है कि अगली खुशखबरी आपके घर पर मैसेज के जरिए पहुंच जाए। आज की वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज की अपडेट में ऐसी अपडेट्स हैं जो कई लाखों लोगों के लिए खुशखबरी बन सकती हैं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि बन गई हैं। हो सकता है कि आपका शनाख्ती कार्ड आप ही के लिए नई किस्तों की उम्मीद जगा दे। और वो दो नई मालूमात कौन सी हैं और प्रोग्राम कौन से हैं, ये सारी बातें आपको बताता हूं। बस वीडियो के साथ तसल्ली के साथ जुड़े रहें और समझें और देखें। इस वीडियो में आपको कोई ऐसी खबर बिल्कुल नहीं बताई जाएगी जो हुकूमत ने ना बताई हो और इधर से हम आपको बता दें। हम आपको जेन्युइन अपडेट देते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में आपने ये बताना है कि अभी तक आपको 14,500 रुपए की ये जो किस्त चली हुई है मिली है या नहीं मिली, ये कमेंट्स में बताएं हमें। ख़वातीनो हजरात, आज की इस वीडियो में बहुत सारी अहम अपडेट में से ये भी है कि हमारे कार्ड अहल थे, हमने सिम भी वसूल कर ली है, मगर अभी सिंगल पट्टी में चले गए हैं। इनका आप अपडेट बताएं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से क्या किया जा रहा है। जरा गौर से सुने। वो खानदान, वो खवातीन बेनिफिशरी जिनको हाल ही में अहल कर दिया गया था और उन्होंने 1 या 2 बार पेमेंट वसूल की है, अब उनका स्टेटस तब्दील करके सिंगल पट्टी में कर दिया गया है। सिंगल पट्टी का ये मकसद होता है कि क्या आप अहल हो गए हैं या आपको रिजेक्ट कर दिया गया है। मैं आपको बताता हूँ इनके बारे में, जिनका सिर्फ यही लिखा रहा है स्टेटस 8171 वेब पोर्टल पर कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में अंदराज हो चुका है। इससे पहले उनको ये आ रहा था कि आप सिम अजरा के लिए अहल हैं या फिर सिम अजरा हो चुकी है या आपका अकाउंट खुल गया है या इनएक्टिव है, ये आ रहा था। अब उनको ये बताया जा रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में अंदराज हो चुका है। आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि आपका स्टेटस हुकूमत ने खुद तब्दील कर दिया है। और ये वो लोग होते हैं जो कई सालों से जांच पड़ताल में रुके रहते हैं और उनका स्टेटस तब्दील ही नहीं होता, सर्वे भी करवा लेते हैं, वैसे का वैसा नजर आ रहा होता है। अब इनका क्या होगा? हुकूमत की जानिब से वो बेनिफिशरीज जिनको हाल ही में अहल कर दिया गया था और उन्होंने 1-2 पेमेंट भी ले ली थी, अब उनका स्टेटस तब्दील करके आपका डायनामिक रजिस्ट्री में अंदराज हो चुका है, इस पट्टी में, इस लाइन में तब्दील किया है। ये वो खवातीन हैं, ऐसी बेनिफिशरीज हैं जिनका स्टेटस सिंगल पट्टी में हो चुका है। इन बेनिफिशरी की दोबारा से वेरिफिकेशन शुरू कर दी गई है, यानी इनकी किस्मत खुलने के चांसेस हुकूमत ने खोल दिए हैं। अब अल्लाह ताला की जात ने इनकी किस्मत में कोई रिस्क लिखा है तो इस सूरत में उनको मिलना है, लेकिन रब की जात तो आपके लिए वहां से रास्ते बनाती है जहां से आपके दिमाग में रास्ते रोजी के, किस्मत के बंद होते हैं, वहां से आगे रब ताला की जात खोल देती है और सख्त तरीकाकार से वेरिफिकेशन होगी। वेरिफिकेशन मुकम्मल होने के बाद उनको दोबारा से प्रोग्राम में शामिल कर दिया जाएगा। जिन बेनिफिशरी का स्टेटस वेरिफिकेशन हो जाएगी उनमें तलाक याफ्ता, बेवा, सरकारी मुलाजमत, गाड़ी, पासपोर्ट, पेंशन होल्डर, फाइलर, दूसरी शादी वाली बेनिफिशरीज शामिल हैं। उनके हवाले से ये सारी चीजें दोबारा फिल्टराइज की जाएंगी, दोबारा चेक किया जाएगा। अगर उनमें भी आपका रिकॉर्ड आता है तो फिर आपके पूरे खानदान की वेरिफिकेशन करने के बाद अगर आप उस मयार पर पूरा उतरेंगे तो आपको अहल कर दिया जाएगा। अब मैं बात करता हूं जिनको सिम भी मिल गई है और वो खुश भी थे, किसका मैसेज भी आ गया था, सब कुछ ओके और प्रोटोकॉल था। मकसद ये है कि बस उन्हें अब पेमेंट मिलना थी। अब पेमेंट मिल रही नहीं, आगे अकाउंट नहीं खुल रहा, जिसके पास जाते हैं उसको भी समझ नहीं आती, आपको भी नहीं आ रही। अब आपने क्या करना है? देखें, इस बात में जल्दबाजी ना करें। आज के बाद या अभी जो आपको केस के लिए ओके कर दिया गया है, आपका नाम आ गया है, आइंदा ये केस हुकूमत के पास वापस नहीं जानी, ये आपको मिलकर ही रहनी है। तो अभी जल्दी ना करें। आप देखें, जिसको जरूरत है उसको जल्दी करनी है, जिसको मिल गई है ठीक है, जिसका कोई मसला आ रहा है वो दफ्तर भी जा चुका है, हेल्पलाइन पर भी कॉल कर चुका है। अब ये मसला है बैंक्स का। बैंक्स जैसे ही ओके करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। जिन बेनिफिशरीज की सिम में रहती हैं, बार बार सेनेटर रुबीना खालिद कह रही हैं कि मेहरबानी से अपनी जाके सिम ले लें, आप वैलेट अकाउंट आप खुलवा लें। देखें, वैलेट अकाउंट खोलने का ये मकसद नहीं है कि बेनिफिशरीज घर बैठे बगैर बायोमेट्रिक रकम विथड्रॉ करा सके, यानी अपनी किस्त ले सके। वैलेट अकाउंट खोलने का मकसद ये है कि बेनिफिशरी के लिए 6 बैंक इस वक्त काम कर रहे हैं, इनमें से किसी भी एक बैंक से पूरे पाकिस्तान में रकम निकलवा सकती है। पंजाब वाली बेनिफिशरी सिंध से और सिंध वाली बेनिफिशरी पंजाब से रकम
रकम निकलवा सकती हैं और टाइम की भी कोई कैद बंद नहीं है। 24 घंटे 7 दिन, कोई छुट्टियों वाला चक्कर वगैरह खत्म हो गया है। अब आपको बताएंगे कि अगर 8171 पोर्टल पर आपका शनाख्ती कार्ड सिम नॉट इशूड का पैगाम शो करता है तो इसका मकसद ये है कि जारी करदा सिम जो है पूरी एक्टिव ही नहीं हुई। तो अभी अपनी सिम दफ्तर से जो ली हुई है वो आपको दोबारा दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, दफ्तर लेते वक्त हमारी खवातीन कुछ ऐसी हैं जल्दबाजी का मुजाहरा करती हैं, उसका पूरा तरीका कार नहीं करवाती, सिम ली, मोबाइल में ना डाली, घर वापस आ गई, ये मसला होता है। वैलेट माइग्रेशन, आपका वैलेट अकाउंट खुल गया है, अपना अकाउंट फाल करने वाले असल शनाख्ती कार्ड, रजिस्टर्ड सिम और मोबाइल फोन के साथ मुतल्लिका बैंक या एजेंट के पास जाएं। अब देखें, ये जो आपका वैलेट अकाउंट होता है ना, बाज़ वक़्त किसी दूसरी सिम पर खुल जाता है जो आपके नाम पर नहीं होती। अब जो सिम आपको मिल चुकी है, आप डिवाइस वाले के पास जाओगे, वो अकाउंट खोलेगा, आप उसको नंबर दोगे तो ये अकाउंट खुद ब खुद आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो जाएगा। खवातीनो हज़रात, आपको एक और नई अपडेट के बारे में बखबर करते हैं। जिन मुस्तहिक खवातीन को एम पिन कोड वसूल नहीं हुआ, वो किस तरह से अपना एम पिन कोड वसूल कर सकते हैं। याद रखिएगा कि उस सिम पर ये आपका एम पिन हासिल करने का ये तरीका कार है, जरा ये नोट कर लें। *786# मिलाने पर ये ऑप्शन आ रहा है लेकिन कोड कबूल नहीं हो रहा। मुंतखब करेंगे नंबर 6 पर माई अकाउंट, फिर मैनेज एम पिन के लिए 1 सिलेक्ट करोगे, उसके बाद फॉरगेट एम पिन पर 2 मुंतखब करोगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज जाएगा, तस्दीकी कोड मसूल होगा, दोबारा *786# मिलाएं, फिर मसूल होने वाला कोड दर्ज करें, इसके बाद अपनी मर्जी का नया 4 हिस्सों का एम पिन दर्ज करें, दोबारा वही एम पिन दर्ज करके तस्दीक करें। तकरीबन 24 घंटों के बाद जैज़ कैश ऐप में लॉगिन करें, फिर आपने BISP रकम किसी भी जैज़ कैश इजी लोड दुकान से वसूल कर सकते हैं। अगर SMS के जरिए कोड मसूल ना हुआ तो फिर आपका काम आगे नहीं चलेगा। मिनॉरिटी कार्ड प्रोग्राम जो है, जिन अफराद का PSER टीम की तस्दीक मुकम्मल होने के बाद मुकम्मल उनके शराइत और ज़वाबित पूरा उतरते हैं, उनको किस्तें भी जा रही हैं और मिनॉरिटी ATM कार्ड भी फ्राहम किए जा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं हुकूमत की जानिब से राशन प्रोग्राम के। वो लोग जो रह गए थे उनके हवाले से राशन प्रोग्राम की किस्तें भी फ्राहम की जा रही हैं और इस हवाले से हमने आपको अपनी एक पहले वीडियो में बता दिया था। अब हम बात कर लेते हैं ममता प्रोग्राम के बारे में। हामला खवातीन और माओं की माली इमदाद का प्रोग्राम है, जिससे आपको 41,000 रुपए तक की इमदाद दी जा रही है। ममता प्रोग्राम में माली इमदाद तिबी मुआयने, वैक्सीनेशन और शर्त पूरी करने पर मिलती हैं। ये कहां पर दिया जाता है और इसके हवाले से क्या डिटेल्स हैं, मैं आपको बताता हूं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। याद रखिएगा कि ये सिंध की खवातीन के लिए प्रोग्राम है। रजिस्ट्रेशन का तरीका कार ये है कि करीबी PPHI या सरकारी जो दफ्तर है उनका, वहां पे आप जाके रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, असल शनाख्ती कार्ड साथ ले जाएंगे और इसके अलावा हमला होने की सूरत में आपको डिटेल के साथ मुकम्मल गाइड भी किया जाएगा। अगर छोटा बच्चा है दूध पीने वाला, उसके मुताबिक आपको गाइड किया जाएगा। मजीद मालूमात के लिए ममता प्रोग्राम की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। हुकूमत बहुत जल्द आप तमाम लोगों का जिनका सिम इनएक्टिव आ रहा है या वैलेट इनएक्टिव आ रहा है, अकाउंट्स को अपडेट करने जा रही है। अब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सोशल प्रोटेक्शन वैलेट बेस में हासिल होने वाली रकम कनेक्ट एजेंट से बआसानी ली जा सकती है। अगर आपका सोशल प्रोटेक्शन वैलेट BISP का ओके है तो HBL कनेक्ट से मुंसलिक हो तो अपने करीबी एजेंट से जाके ये पेमेंट वसूल कर सकते हैं। इस तरह की मजीद मालूमात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि आपको ये खबरें मिलती रहें। मोहतरम नाजरीन, बहुत सारे व्यूअर हमारे से रजिस्ट्रेशन का पूछ रहे होते हैं कि हमने नशो नुमा प्रोग्राम में शामिल होना है, उसका तरीका कार बताएं। मैं आपको इस हवाले से बता देता हूँ, जरा नोट कर लें। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए कुछ शर्त ये है कि खातून हामला हो। याद रखें कि इस कैटेगरी के 3 प्रोग्राम है। आगोश प्रोग्राम जो है सिर्फ पंजाब के लोगों के लिए है, ममता प्रोग्राम सिंध के लोगों के लिए है और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो बेनजीर नशोनुमा प्रोग्राम है ये पूरे पाकिस्तान के लिए है। सिंध, बलोचिस्तान, KPK, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद जम्मू कश्मीर, इस्लामाबाद, फाटा तमाम इलाकों के लोगों के लिए है। प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए तहसील या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में नशोनुमा मरकज कायम है। अगर आप ऊपर दी गई तमाम जो मैंने बताई है पहले मालूमात पूरा
उतरते हैं तो खवातीन का नादरा से जारी करदा शनाख्ती कार्ड, बच्चे का नादरा से जारी करदा बेफार्म या बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चे की हिफाजती टीकों का कार्ड ये साथ लेकर जाएंगे। हमला खवातीन दौरान हमल हर समाई 2500 रुपए की रकम दी जाती है। इसलिए जब अस्पताल जाते हैं और आपसे अस्पताल वाले कहते हैं छोटी अस्पताल हो या बड़ी अस्पताल हो, बच्चे का बेफार्म या बर्थ सर्टिफिकेट तलब करते हैं, यही वजह होती है कि उन्होंने आपको पैसे देने होते हैं। बेटे की पैदाइश की सूरत में 2500 रुपए और बेटी होने की सूरत में 3000 रुपए समाही आपको मिलते हैं। बाशमूल 500 रुपए सफरी अखराजात भी हुकूमत आपको देती है। जब तक बच्चे की उम्र 2 साल हो जाए ये रकम BISP कफालत की रकम के अलावा मिलेगी। अगर आप BISP में शामिल हैं और ये पैसे भी आपको सिम पर ही मिल सकते हैं और मिलेंगे। हामला दूध पिलाने वाली माएँ और 2 साल से कम उम्र बच्चों को खुसूसी ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक के पत्ते भी और पैकेट्स फराहम किए जाते हैं। ये वो अहम तरीन मालूमात हैं जो EDU ट्रेनिंग के जरिए आपको फराहम की गई हैं।